Hello, friends. Welcome for this talk with Kapil after the forgiveness meditation. And we've received several questions from so many of you, and we are going to be asking those questions. You're welcome to post more questions as we go along if you have any, and we will try and cover all of it. So, we are really overwhelmed with the turnout today. I see that we are like about 100 people, and with friends, students, and your families you bought here. It is just amazing. So, thank you so much. So, let's start. But I request that no hands up or no unmuting yourself. If there are any questions, please do write on chat and we will try and get that covered as well. So thank you all for understanding. Thank you. जी अवंतिका जी, आप लोग सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। इतना कुछ ऐसा नहीं है, प्लीज आप कैमरे ऑन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी। तो हम कपिल, कैन आई स्टार्ट पहले क्वेश्चन से? अच्छा, मेरी क्लास लगा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आई थिंक। तो सबसे पहले प्रश्न आया है कि हाउ डज तुम लोग खुद ही आंसर दो। आज जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आई वुड लाइक देम टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है जी, आप बोलिए। तो पहला प्रश्न है कि हाउ डज नॉट एबल टू फॉरगिव अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस? सॉरी, हाउ डज नॉट एबल टू फॉरगिव अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस? ठीक है, ओके, आगे चलो। पहले क्वेश्चन देन कैन, फिर है कि कैन फॉरगिविंग समवन मेक आवर रिलेशनशिप विद देम बेटर एंड हाउ? ओके, और फिर how should we handle forgiveness if the person who hurt us is not interested in making things right and not interested in receiving forgiveness? रिसीविंग फॉरगिवनेस। ओके, चलो ये जिसने भी पूछा है समझते हैं क्या क्वेश्चन है उनका। ठीक है, और क्या है? Some family members passed away few years ago, and until now there are so many incidents of the past that hurt me and I'm unable to forgive them, including my parents. What can I do and how can I forgive them? अच्छा, including my parents, or she, whosoever is not able to forgive the parents also, right? Parents and in-laws, हाँ. ठीक, और क्या है? How to choose peace over anger, how to be able to forgive always. How to choose peace over anger. Okay. और एक है, generally when a person is powerful and can take revenge or retaliate, then only it is considered that they can forgive the other. But if one is weak and cannot do anything, then how can we forgive? Is it not forceful forgiveness, as we don't have any choice left with us? Okay, interesting. Okay, और क्या है? What is the true meaning of forgiveness? Is forgetting what the hurts were forgiveness? And if we are not bothered by those incidents, or just letting go of those things and move on? So, what is the right way to ask for forgiveness? Just saying sorry and expecting other person to forgive and forget instantly? Okay. बस? और है नहीं, और भी दो तीन हैं. Okay. So, can forgiveness cause subtle energy manipulations? If yes, what is its karmic implications? Okay. ठीक है, बस? And what can we do to help to instill the value of forgiveness and gratitude in our children? And how can we forgive ourselves? Because that is the toughest. Okay. बस? जी. Okay. तो से फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना क्या था? Some family members that passed away. उससे ऊपर
उससे पहले How should we handle forgiveness if the person who has hurt us is not interested in making things right and उस receiving forgiveness? उससे भी ऊपर Can forgiving someone make our relationship with them better? If so, how? बस यही है, इसके ऊपर तो नहीं है। एक क्वेश्चन था बहुत If- इंटरेस्टिंग। How does not able to forgive affect our health and happiness? नहीं वो तो फर्स्ट है ना, फोर्थ के बाद पढ़ना, फोर्थ फिफ्थ। How to choose peace over anger and be able to forgive always? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो कौन आंसर देना चाहते हैं? Okay. रंजना सर। आप लोगों के क्वेश्चंस I'll try to answer all of them. जो भी आंसर्स हैं वो अगर कोई बीच में पूछना चाहता हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी बात को समझने के लिए एक हर इंसान का अपना एक लेवल है जहां से वो समझता है। पर ऐसा है कि हम सब सोचते हैं कि हम सब बातों को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि किसी बात को समझते कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी का कॉल आया हुआ था, तो उसको मैं कुछ समझा रहा था, तो उसने बोला हाँ हाँ समझ आ गया। उसका क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि वर्ल्डली चीजों को छोड़ दो। तो मैंने बोला अगर वर्ल्डली चीज में बोलूंगा कि हर वर्ल्डली चीज तो शक्ति है, फिर देन ही गॉट कंफ्यूज्ड। सो कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ से समझना चाहते हैं किस बात को, वो आप पे डिपेंड करता है। तो किसी ने अभी क्वेश्चन किया कि हमको शांति को, पीस को क्या चूज करना चाहिए, राइट, ओवर एंगर, कैसे कर सकते हैं, यही था। देखिए पीस को तो हम ऑलवेज हमेशा ही चूज करते हैं। इसका छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कितनी देर गुस्सा हो सकते हैं, 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ आवर बॉडी, आवर सिस्टम, जो एंगर को ले ही नहीं सकता, बीमार हो जाएंगे। किसी दिन आप बहुत ज्यादा गुस्सा कीजिए, देखिए 2 दिन के बाद आपको एंजाइटी होने लग जाएगा। सिर्फ 1-2 घंटा गुस्सा होके रहिए, 2 दिन के बाद देखेंगे, अगर नेक्स्ट डे नहीं भी होता है तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, देन तो ये इश्यू उस दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन पहले जो आपने बहुत गुस्सा किया था उसका एंजाइटी हो रहा है आपको। तो बॉडी इज सिंपली शोइंग दैट दैट इज लाइक एंगर इज नॉट आवर नेचर, ये नेचर ही नहीं है हमारा। हाँ, शांति में आपको ध्यान में बैठा दें, आनंद में बैठे रहिए, पूरा पूरा दिन बैठे रहिए, पढ़ने का, काम करने का भी मन नहीं होगा, शांति से बैठिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो चूज करने की तो बात ही नहीं, ये तो नेचर है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब हम गलत चॉइसेस मान लेते हैं, तो क्या होता है, तो फिर सफर करते हैं। तो इतना ही बात है। तो अगर हम कहें कि हम इसका चॉइस कैसे करें, नेचर ने इसको चुना हुआ है, और जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही। वो आप, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी खुद ही बोलेगी, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। क्या और किसी ने पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या था कि हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, राइट? देखिए दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ जीनोजेनेटिक्स विच इज वेरी वेरी पॉपुलर दीस डेज, बहुत पॉपुलर है। The recent studies, from the medical science, not from me, basically tells you that हमारा जो हमारी इमोशंस हैं वो हमारे जेनेटिक कोड्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है कि जिस तरीके का भी
मेरा जैसा स्वभाव होगा या किसी भी एक इमोशन में मैं लंबे टाइम के लिए रहता हूँ तो मेरे को वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो हेल्थ इश्यू हो सकता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ साल पहले की बात है। देयर आर मेनी एग्जांपल, चलिए कौन सा। तो हाँ, तो ये एक डॉक्टर हैं जयपुर में। तो शी कॉल मी एंड शी टोल्ड मी कि कपिल, मेरे हस्बैंड को इनिशियल स्टेज का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है, सो आई डोंट वांट कि कुछ मेजर इश्यू हो। तो इट्स अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज। तो मैंने बोला ठीक है, आपके हस्बैंड से बात करते हैं। तो देन ही वाज वेरी रिचर्ड कि बात क्या करें, ये करें। वेरी सीनियर गाय। तो जैसे तैसे मान के बात किया मेरे से। तो बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ बताइए अपने बारे में, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या हुआ था। He said, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, वो तो पुरानी बातें हैं। तो जैसे उन्होंने बोला पुरानी बातें हैं तो मैंने बोला कुछ तो होगा। देन ही टोल्ड मी अ स्टोरी कि उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई। तो जो लड़की, अब मतलब शादी कराई का मतलब ये कि दिस गाय वांटेड कि मेरा बेटा इसी इसी फैमिली में शादी करे, इसी लड़की से शादी करे, शादी करा दिया। तो वो लड़की ठीक नहीं होगी, घर में बहुत प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने केसेस फाइल कर दिए, हवालात भी जाना पड़ गया, काफी इश्यूज हो गए। देन ही टोल्ड मी कि भाई अब तो सब सही हो गया है, मेरा तो पोता भी हो गया, आई एम सो हैप्पी। देन आई टोल्ड हिम दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओवर, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो ऐसी एक लड़की मुझे मिली, ऐसे ही बैठा हुआ था पहले मैं तो सोशल मीडिया पे, ऐसे फेसबुक पे बैठा था। तो रात को ऐसे 2 बजे किसी का मैसेज आया। उसने बोला कि आई वॉन्ट टू लिव कपिल, आई डोंट वांट टू डाई, सॉरी बस ऐसे लिखा, आई डोंट वांट टू डाई। तो रात को 2 बजे मुझे कोई मैसेज कर रहा है, तो मैंने देखा, मैंने प्रोफाइल कौन है, मैंने बोला जी बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प। देन शी रोट टू मी कि मैं कैन आई टॉक टू यू। तो मैंने ठीक है, कॉल कीजिए। देन शी टोल्ड मी शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। और देन शी स्टार्ट टेलिंग मी स्टोरी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास इलाज नहीं करा रही हूँ। तो मैंने बोला कल सुबह आप हॉस्पिटल में होंगे और अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे आप। शी सेड दिस इज नॉट पॉसिबल। आई सेड ओके, कल हॉस्पिटल से फोन करना। तो मैंने उसका पेन इतना इंड्यूस कर दिया बॉडी में कि वो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। नेक्स्ट डे शी कॉल मी फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड लिटरली वो मुझे माँ बहन की गालियां दे रही थी लड़की। आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ यू। फिर ऐसी मुलाकात हुई बात करने के लिए। आई सेड आई कैन हेल्प यू। तो जब हमने उससे बात शुरू की, देन शी वी फाइंड आउट दैट कि शी वांट्स टू कीप दिस कैंसर, कि इसलिए वो कैंसर रखना चाहती है। तो बात हुई तो जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मैंने मतलब उनसे, तो काफी साल पहले शी वाज इन लव विद अ गाय। तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो सिख सरदार हैं फादर, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो शी बिकेम वेरी वेरी अपसेट और उसने शादी भी नहीं की। एंड देन आई टोल्ड हर कि वी कैन करेक्ट दिस, वी कैन हेल्प यू। She said, no, Kapil, I want to keep this cancer because I want to punish my parents, my father, because my father loves me so much and I want him to suffer, till the time he is there. So you can understand your thoughts, आपके जो विचार हैं वो कितने कितने important है. And it is not about Kapil, but you can find it out if you type genogenetics. You will get lot of work over this. That more than 95% of your illnesses are basically related to your mental health. So your emotions are very very important. आप लोगों ने अध्यात्म में सुना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, come into this consciousness. So in spiritualism, when we talk about मैं शरीर नहीं हूँ, तो basically this is the first stage, when you disconnect with your physical body. तो हम जैसे सुनते हैं ना, योगी लोग हैं, वो कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जिए। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखिएगा जो जेनेटिक्स का है, इफ यू
कंप्लीटली डिस्कनेक्ट विद योर बॉडी, मीन्स इमोशनली अगर आपको इफेक्ट नहीं होता है तो आपकी लाइफ बहुत लंबी हो सकती है। तो हमारे अध्यात्म में कैसे बोलते हैं कि आप शरीर नहीं है, कम इनटू दिस कॉन्शियसनेस। सो इफ यू कम इनटू दिस कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स यू विल एक्सपैंड द लाइफ स्पेल ऑफ योर लाइफ। वो किस लिए? भोगने के लिए नहीं, so that you can work on yourself as much as possible to enlighten yourself, कि आप दोबारा जन्म ना लें। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था? किसी का क्या क्वेश्चन था? कि और एक दो क्वेश्चन बेटा। How do we handle forgiveness if the person who is hurt is not interested in making things right and receiving it? ओके भाई, हम किसी को रिसीव नहीं करा सकते, यू नो। पहली बात तो ये कि आप लोग फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस कर रहे हैं, आप फॉरगिव करने की स्टेट में आते क्यों है? पहली बात तो ये। द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन इज दिस कि मैं क्यों बोलूं कि मुझे किसी को फॉरगिव करना है। इफ आई हैव टू आस्क फॉर अ फॉरगिवनेस, आई अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है यार, हमसे कुछ हुआ। अब मैं बोलूं कि मुझे किसी को माफ करना है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? लोग बोलते हैं हम हर्ट हो गए। कहाँ हर्ट हुआ भाई? अगर हाथ में चोट लग गई है तो ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ। दिल में चोट लगी है तो दिल के डॉक्टर को दिखाओ। किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर तो बोलेगा भाई कहाँ चोट लगी है मुझे बताइए। तो ये हर्ट हो गए, हमें तो फॉरगिव करना है, इसका मतलब क्या है? कभी सोचिए। और किसी ने पूछा था कि वो है क्षमा शोभती, बलवान जो बलवान होता है उसी को क्षमा शोभा देती है, कि वो क्षमा करे किसी को। कमजोर आदमी क्या क्षमा करेगा? तो हम यहाँ पे एक फिजिकल वॉर की बात नहीं कर रहे कि एक कमजोर आदमी है और एक स्ट्रांग है। एक हड्डी वाला आदमी भी ना, एक हड्डी क्या, आपने वो गरीब बच्चों को देखा है झुग्गियों के पास? जाके देखिए, कुछ बोल के देखिए, या मेंटली इमोशनली सो स्ट्रांग। तो यहाँ पर हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं कि किसी पहलवान की किसी मच्छर से लड़ाई हो गई है तो मच्छर कैसे उसको माफ करेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस इन रिलेशन टू दी योर साइकोलॉजिकल हर्ट्स। जो साइकोलॉजिकल हर्ट है, आपको चोट लग गई है तो मेरा साइकोलॉजिकल हर्ट है क्या? बताइए क्या क्या हर्ट कर रहा है आपको? आपके सभी आंसर्स का एक ही, क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। ऐसे तो अगर आप सोचेंगे तो एक ही आंसर, एक ही शब्द में आंसर है सब बात का। तो अभी हम पहले ये समझें कि यहाँ पे कोई पहलवानी की बात नहीं है, ठीक है, राइट? कि हम फॉरगिव कैसे करें, क्यों करें, हमें शांति क्यों चाहिए। तो हमने पहले जाना कि पीसफुल रहना ही मेरा नेचर है। दूसरा कि हम हर्ट होते हैं, हम में क्या चीज हर्ट होती है? कभी आप सब सोच के देखिए कि वो क्या है जो मुझे हर्ट कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि जो आपने अपनी फॉल्स इमेज बना रखी है ना, जो आप सोचते हैं कि मैं ये हूं, बस वही हर्ट हो रहा है और कुछ नहीं हर्ट हो, कुछ भी नहीं हर्ट हो। और अगर आध्यात्मिकली इस बात का उत्तर चाहते हैं तो अभी मैं बताता हूँ इमेज क्या है। अगर आपको आध्यात्मिकली आंसर चाहिए तो भगवान कहते हैं, हमारे संत गुरु महात्माएं, द मोस्ट जीनियस पीपल, वो ये कहते हैं कि आपको कोई चीज हर्ट हैरास कर ही नहीं सकती। कुछ भी आपको हर्ट या और हैरास कर ही नहीं सकता अंटिल, जब तक आपका कोई कर्मा नहीं हो। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई आपको एक मच्छर भी नहीं काट सकता, आपको एक वायरल आपको या बैक्टीरिया भी इफेक्ट नहीं कर सकता, आप मर ही नहीं सकते, आपको वो तंग ही नहीं कर सकता, आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं दे सकता।
जब तक आपका प्रारब्ध ना हो, प्रारब्ध का मतलब होता है कि इस जीवन में जो हम पाप और पुण्य लेके आए, जो कर्म भोगने के लिए आए, तो ये कहना कि कोई मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे कुछ नहीं हर्ट कर रहा है, मेरा कर्मा ही वो वापस मेरे पर ही आया है, हर्ट हो रहा। पर एक बात पूछता हूं आप सबसे, आप लोग ये हर्ट होने से इतना डरते क्यों? कभी आपने सोचा है कि अगर आपको तमाम जिंदगी के सुख मिले और आपकी जितनी आयु चाहते हैं आपको मिल जाए, तो क्या होगा? तो आध्यात्मिक तो देयर विल बी नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म विल लेफ्ट। सिर्फ तो एक यही होगा कि बस खाओ पियो भोग करो जितना कर सकते हैं। और एक हमारे बड़े लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई भी मुसीबत जो है आपको गिराने के लिए नहीं आती है, बनाने के लिए आती है। जब तक मेरे को किसी नेगेटिव एनर्जी का, या जिसको आप नेगेटिव बोलते हैं, या मुझे मेरा कोई कर्म मुझे चैलेंज नहीं करता है, मुझे दुख नहीं होता है, तब तक मेरे अंदर वो हायर कॉन्शियसनेस कभी एक्टिवेट हो ही नहीं सकती। नहीं तो मैं ऐसे ही डल रहूंगा। मेरे अंदर एक हायर कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट होने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो किस लिए एक्टिवेट हो? क्यों एक्टिवेट हो? खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, गाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, सोना चांदी बहुत है, तो उसको एक्टिवेट होने की जरूरत ही क्या है? तो क्या रहेंगे? तो क्या बोलते हैं, जैसे नाथ पंथ में क्या बोलते हैं कि मनुष्य योनि में पैदा होने का मतलब मनुष्य बनना नहीं होता है। मनुष्य योनि में भी रह के पशु ही रहते हो। पहले तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर पहला काम तो यह है कि मनुष्य बनो। मेरे हिसाब से ऐसा हो, मेरे हिसाब से वैसा हो, मेरी चलती रहे, मेरा सबके ऊपर राज हो। अरे बाबा, जिनके राज भी रहे वो भी सुखी नहीं रहे। और फिर मैं हर्ट हो रहा हूँ। क्या हर्ट हो रहा है? आपकी एक इमेज ही तो हर्ट हो रही है कि आप अपने आप को कुछ, मैं अगर कोई फन्ने खां समझता हूँ अपने आप को और किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं हर्ट हो गया, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो बहुत महान हूं। अगर मैं इतना महान हूं तो जानू तो सही मेरी महानता क्या है। हाउ ग्रेट आई एम, लेट मी नो ना, मुझे पता तो लगे कि मैं कितना महान हूं। और जो हम करते हैं वो नहीं दिखता। तो इस सृष्टि में भगवान हमारे पुलिस वालों की तरह ब्राइबरी ले ही लेते हैं। जैसे हमारे समाज में, हमारे देशों में, हमारी कंट्रीज में, स्टेट में आप हायर अथॉरिटी को पैसा खिला के छूट जाओगे। भगवान ऐसे नहीं है कि उसने पैसा खिलाया भगवान को इसलिए मेरे को कष्ट हो रहा है। अगर ऐसे भगवान को मानते हो तो छोड़ दो भगवान को। तो तुम्हारा पैदा किया हुआ तुमको मिल रहा है तो चिल्ला क्यों रहे हो? और किसको क्षमा करना है? और क्षमा करने की जरूरत क्या है? देखिए, जब तक इस सृष्टि के इस सृजन में जो कुछ है, जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है, उससे एक हार्मनी में नहीं आओगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता। तो आप लोग तो बहुत सुनते हैं ना सब लोग कि कण कण में भगवान है। तो इसका मतलब क्या है? कभी समझना कि भगवान कण में, पत्थर में भगवान देख रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर आप एब्सोल्यूट हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं एंड एक लव इट विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग क्रिएट कर सकते हैं, तब तो आप भगवान को प्रणाम करने योग्य हैं। नहीं तो आप जितने भी दोष देखते हैं इस संसार में, तो दोष इंसान में नहीं देख रहे, आप भगवान में दोष देखते हैं।
क्यों? क्योंकि उसकी बनाई हुई सृष्टि को, उसकी सत्ता को आप चैलेंज कर रहे। Whom you are challenging? You're challenging God. You are not accepting whatever you have done in your this life or previous lifetime. You are just complaining. Complaining whom? You're not complaining to the person, you're complaining right there that you are not right. And if you have this kind of a consciousness, then I have nothing. मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आपको स्वयं को क्षमा करना पड़ेगा। स्वयं को क्यों क्षमा करना? क्योंकि मेरा जन्म मनुष्य योनि, हमारे संत बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, हमारा जन्म आत्म उद्धार के लिए हुआ है, अपने उद्धार के लिए हुआ है, भोगने के लिए नहीं हुआ है कि कोई मुझे हीरो बना दे, मेरे को हीरोइन बना दे, मैं तो महान हूं। एक ही महान हो सकता है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, केवल वही। अपने महानता बन दिखाने के लिए और बनने के लिए मत बैठिए। कोई महान नहीं है, नहीं था, ना होगा। केवल एक ही महान हो सकता है, वही परम सत्ता, या जिस पर उसकी कृपा हो, जो हमें उसका ज्ञान दे सके, वो हमारे लिए महान हो जाता है, गुरु स्वरूप। आप कौन सी फॉरगिवनेस करने जा रहे? मैं तुझे माफ करता हूं बच्चा, जा। अरे तू क्या माफ करेगा भाई? तू ही तो बोया क्या है, खुद ही गड्ढा खोदा था, खुद ही गिरा, अब तू किसको माफ कर रहा है? तो ये जो खेल हो रहा है, ये तो सब झूठ का खेल है। आप भी बैठते हैं, हाँ जी हम माफ कर दिया हमने अपनी माता को, पिता को, भाई को, सखा को। अरे क्या माफ करोगे? भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हारा पिता दुष्ट भी हो तब भी उसका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि वो ही माता पिता के कारण तुम्हें ये देह मिला है। अगर तंत्र को जानोगे, अगर देख पाओगे, तो आप अभी जानते नहीं है कि कितनी आत्माएं, आप सोच नहीं सकते, ये मनुष्य देह पाने के लिए बैठी हैं। बाहर नहीं, आपके भीतर भी, आपकी जेनेटिक्स में, आपकी लाइंस में, तमाम। ये गलत फहमियां मत पालो कि बस मरेंगे तो पैदा हो जाएंगे। अरे चूहा बिल्ली बनने के लिए भी नहीं मिलेगी जगह, ऐसी हालत है। सांस तो ले नहीं सकते। एक स्पर्म से पैदा हुए, स्पर्म की फोटो दिखाता हूं मैं, आप भी देख लीजिए सब जाके, और पूछिए उस सब स्पर्म से कि यार ये इधर से ऐसा कैसा बन गया मैं। ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक सेंस तो है ही नहीं। अब ये तो हम आध्यात्मिक बात क्या करें? अभी तो ये कॉमन सेंस नहीं है। ये नहीं दिखता कि मैं सांस लेता हूँ, खुद तो लेता नहीं। अगर खुद लेता होता तो रात को जगाना पड़ता, भाई सांस ले ले कपिल भाई, सांस तो रुक जाएगी। इतना भी नहीं दिखता कि ये श्वास भी खुद चल रही है, जन्म भी ऐसे ही हुआ, शरीर भी ऐसे ही हुआ, मृत्यु भी भगवान जब आज चाहेंगे तो ये शरीर ले लेंगे, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़े चौधरी हम हैं। सॉरी फॉर माय वर्ड्स लैंग्वेज, बट ऐसा ही है कि हम माफ करेंगे, हमें ऐसा किया। अरे भैया आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तो इंद्र भी चुरा नहीं सकता, इंद्र में भी कोई हिम्मत नहीं। तो फिर जो हमें लाते पड़नी है वो भी कोई चुरा नहीं सकता, वो भी मिलेंगे हमको। तो भगवान क्या बोलते हैं? मुक्त वो है जो ये जाने कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ,
उसका कारण मैं स्वयं हूं। तो किसी को माफ मत करिए, खुद को क्षमा कीजिए कि मैंने अपनी आत्मा को, मैं स्वयं एक जीवात्मा, कितना कष्ट दे रही हूं ये देह पाने के बाद भी। ये पेट तो भरता नहीं, वासनाएं खत्म नहीं होती। मतलब यहां तक की वासनाएं हैं कि मेरे को कोई ऐसा बोले, वैसा बोले। अरे भैया, बोल दिया फिर क्या हो गया? छाती और चौड़ी हो गई और अहंकार बढ़ गया। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर केवल मात्र एक ही है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स ईगो। दूसरा, अज्ञान। जब तक इसमें लिप्त रहोगे तब तक किसी को माफ कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी प्रयास करिए कि मैं माफ करता हूं, अरे कौन है वहां जिसको माफ करना है? वहां तो मैं ही हूं। किसको माफ कर? मैंने गड्ढा खोदा, मैं गिर गया, अब मैं जा रहा हूं कि मुझे बहुत गुस्सा आया उस गड्ढे खोदने वाले, फिर मैं जा रहा हूं कपिल माफ करने के लिए। वहां गया तो पता लगा कि मैंने ही गड्ढा खोदा था, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, खुद को माफ कर। तो आपका बस इतना ही। कितना टाइम हो गया? और कोई सवाल? Kapil ki, can forgiveness cause subtle energy manipulations? If yes, what is its karmic क्या implication? करना है मैनिपुलेशन में? क्या करना है? ईमानदार हो जाओ, सब मैनिपुलेट हो जाएगा। ईमानदार हो जाओगे तो पता है कौन मैनिपुलेट हो जाएगा? भगवान मैनिपुलेट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे सच्चे भक्तों के पीछे मैं चलता हूं। अगर तुम्हें मैनिपुलेट ही करना है ना, तो उसे मैनिपुलेट करो, उसे ऐसा प्यार करो कि तुम्हारे, जहां भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के जहां पग पैर पड़ते हैं उन पर मैं चलता हूं, उनके पीछे पीछे। क्या मैनिपुलेट करना चाहते हैं? तो मैं तुम्हें ऐसा बड़ा राज देता हूं, ऐसी बड़ी मैनिपुलेशन करना है तो फिर बड़ा काम करो ना। अब मारना भी है तो चींटियां मच्छर क्यों मारो, बड़ा हाथी मारो। तो ऐसी मैनिपुलेशन करो कि वो मैनिपुलेट हो जाए। किसको मैनिपुलेट कर रहे हो? पति को, पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को, बॉस को? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा उतना ही जो प्रारब्ध में है, पर उसे मैनिपुलेट कर लोगे ना। तो मैं तो नहीं बता सकता कि क्या मिल सकता है, पर कहते हैं कि तीनों लोग मिल जाते हैं। जब सुदामा गया था एक कटरी में, वो चावल सूखे लेकर, तो भगवान ने एक फांक लिया, दूसरा लिया, तो माँ लक्ष्मी घबरा गई, बोली कि भैया तीसरा मतलब तीनों लोग दे दोगे इसे तो हम जाएंगे कहाँ? तो उस अकारण कृपालु को, जो सदैव 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 कृपा करने वाला है, उसे उसे मैनिपुलेट करो, उसको बांध लो अपने प्यार में। अहंकार से नहीं कि ये संसार बेकार है, नहीं। तेरा बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है प्रभु। ये नहीं कि सब बेकार है, दुनिया बेकार है, मुझे भगवान नहीं, तब तुम भगवान को नहीं चाहते। पहले इस बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना होगा, उसको कण में देखना होगा। प्रभु तूने क्या बनाया है, ये सुंदर सोफा, ये पंखे, ये रोशनी, ये सितारे, ये इंसान, ये जीव, ऐसे देखना होगा। तुम कहते हो अरे सब बकवास है, वो सही है। अब बनाने वाला बकवास है तो फिर बकवास के पास जा ही क्यों रहे हो? चलिए, हो गया। आप लोग आनंद लीजिए, तो बैठ के क्षमा कीजिए जैसा लगे आपको। कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। मैं ऐसे ही फालतू बोल देता हूँ। Thank you, Kapil ji,
for being here and for helping us to understand forgiveness deeply. Thank you so much, everyone, for participating and sending in your questions. We look forward to hearing from you. What would you like us to discuss? And do stay updated because we will be bringing you more such sessions coming forward. Thank you.